जी, तो आपके कोई सवालात हैं पिछले लेक्चर में, कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो प्लीज़ आप पहले वो पूछ लें और उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने मर्ज सॉर्ट की रिकरेंस को सॉल्व किया था और वी रीच्ड एट अ कंक्लूजन के merge sort runs in and log n. That's our conclusion where we reached. So if you have any issues in the derivation, you can ask. If there are no questions, then we move on, and today we will solve mole recurrences in a greater detail. G, any questions? No, sir. Okay. इसमें लास्ट लेक्चर में मैंने एक लूप होल छोड़ा था, या यूं कह लें कि एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा, वो ये कि why this 2 raised to the power log n, why this is equal to n. और यहाँ पे ये जो LG है, this is log base 2. Okay? Make sense? जी सर. Okay. So इसमें मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा कि ये 2 raised to the power log n जो है ये n के इक्वल क्यों है? Why is that? Anyone? Any idea? सर मैं तो यही पता कि अगर जिसकी मतलब जिसकी पावर है लॉग वो और लॉग की जो बेस है वो सेम हो तो लॉग बेस के साथ जो वैल्यू होती है उसके इक्वल हो जाता है। ठीक है। हाँ जी, असल में लॉग के अंदर ये जो चीज़ है बेस, ये लॉग की बेस नहीं है, ये एक्सपोनेंट की बेस है। ये दोनों स्वैपेबल होते हैं, यानी इन दोनों को आप आपस में स्वैप कर सकते हैं एंड थिंग्स स्टिल वर्क। सो दिस इज ऑलवेज पॉसिबल। लेकिन अगर इसको प्रूफ करने की कोशिश करें तो हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं मैथमेटिकली। लेट्स से 2 raised to the power log n, let's say that is equal to some value. We do not know what that value is, but let's say that is y. So let's say this thing is equal to y. And now if you take log both sides, log of 2 raised to the power log n, that is equal to log y. And if you know that log of something, for example, log of anything, a raised to the power x, this x goes in the front and that becomes x log of a. In that case, if you see this particular scenario, then this value goes down here and we get log n log 2 is equal to log y. Yes? Yes, so far so good? जी सर. Yes, sir. And log 2, which is equal to log of 2 to the base 2, that is always equal to 1. Actually, log of x to the base x, that is always equal to 1. So this is 1 that goes away. So that means log n is equal to log y, which
which tells us y indeed is n. Okay. Yes, sir. जी सर. So that means this value y, that is that value y is actually n. So 2 raised per log n is n. And this is true, yani, this is true for anything. For example, if you have 2 raised to the power, let's say log of n square, that will be equal to n square. And the reason simply is this and that, these two are swappable. आप इन दोनों को swap कर सकते हैं. Okay? Yes, sir. लेकिन इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये n स्क्वायर डायरेक्टली लिखने का मतलब ये है कि ये इसकी ये जो बेस है और ये जो लॉग की जो बेस है और ये वैल्यू जो है ये दोनों सेम हो. ऐसा ना हो कि आप लिख दें फॉर एग्जांपल 3 रेज टू द पावर लॉग, या लॉग बेस 2 ले लेते हैं, 3 रेज टू द पावर log n, that is not equal to n. Okay? Yes, sir. Okay, sir. ये क्लियर रखिएगा. So with this, now I guess the merge sort solution is in front of you, and that is perfectly okay. Yes? जी सर. Okay, great. अच्छा, अब अगर मैं आपसे आपके सामने एक रिकरेंस लिख दूं, कोई भी रिकरेंस, और अज्यूमिंगली वो रिकरेंस किसी ना किसी कोड की रिकरेंस होगी, किसी ना किसी प्रोग्राम की रिकरेंस होगी, तो आप उस रिकरेंस को सॉल्व कैसे करेंगे रिगार्डलेस ऑफ कि वो कौन सा प्रोग्राम था. ठीक है, इसको यूं करते हैं. let's say t of 1 is equal to constant. Let's say t of n is equal to t of n over 3 plus t of n over 3 plus some theta n. Let's say this is some recurrence, और इसको solve करना है. Clear है? So what is the solution of this recurrence? That's the question. मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर. सर हम रिकरेंस को सॉल्व करें. जी, इस रिकरेंस को अगर हमने सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे? t(n/3) की वैल्यू पुट करेंगे. सर सबसे पहले t(n/3) की रिकरेंस को सॉल्व करें. हाँ, उससे भी पहले बेहतर है कि अगर ये दोनों सेम हो तो इनको कंबाइन कर लें. इनको कंबाइन कर लें, यानी it is good to write t of n is equal to 2 times t of n over 3 plus c2n. अच्छा, इस रिकरेंस को भी जस्ट होल्ड ऑन, मेरा ये राइटिंग पैड नहीं सही तरह सेट हो रहा. इस रिकरेंस को भी सॉल्व करने से पहले अगर आपसे कोई कहे कि यार ये जो रिकरेंस है ये किसी ना किसी प्रोग्राम की रिकरेंस होगी, तो वो प्रोग्राम मुझे लिख के दिखाएं. तो रिकरेंस अगर गिवन हो तो आप कोई भी प्रोग्राम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं. मिसाल के तौर पे आप I mean it's very simple to write any program, any kind of program. Let's say, let me write the program as P, and it takes array A, let's say, or maybe right some function. It takes an array A. That's our definition, let's say. And then if length of A equals 1, return. I mean, we need not to give any sensible output. All is that write some function whose recurrence is this. So how will we write that code? Or then we can say, okay, A1 is equal to A, starting from the very beginning to the length
of a divided by 3. That is 1/3. And then we can have, okay, fun a1, fun a2, and that's it. The function closes here. You can see this function has exactly this recurrence. Although the function doesn't make any sense, or maybe what the function is doing is not much clear how useful this function is. But this function जो मैंने अभी राइट साइड पे लिखा है, इस फंक्शन की रिकरेंस यही है अगर आप बना लें. Is that true? सर आपने कैसे बनाया है फंक्शन, समझ नहीं आई. नहीं, मैंने तो ऐसे ही कोई फंक्शन लिख दिया है. मतलब मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि एक ऐसा फंक्शन लिखूं जिसकी रिकरेंस ये बने. तो उस फंक्शन में क्या होगा, 2 रिकर्सिव कॉल्स होंगी जिनका साइज 1/3 होगा. सॉरी, ये 1 नहीं है, तो ये 1/3 है साइज ना. 2 रिकर्सिव कॉल्स हैं. वो रिकर्सिव कॉल्स क्या कर रही हैं, आई डोंट केयर. यानी मैं कोई ऐसा फंक्शन नहीं लिखने जा रहा जो कोई सॉर्टिंग या सर्चिंग करेगा. मैं सिर्फ एक फंक्शन लिखने जा रहा हूं जिसकी रिकरेंस ये होगी जो मैंने लिख दी है. अगर मैं पहले फंक्शन लिख दूं तो उससे रिकरेंस बनाई जा सकती है. अगर मैं रिकरेंस लिख दूं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई फंक्शन लिखा जा सकता है जिसकी रिकरेंस ये हो. यस? ओके सर. और इस कमांड, ये जो कमांड है, अगर ये डीप कॉपी होगी तो ये 1 by 1 एलिमेंट लेके जाएगी और ये थीटा n टाइम लेगी, ये वाली कमांड. और अगर ये शैलो कॉपी है बिल्फर्स, तो आप यहां पे एक और कमांड लिख सकते हैं, जस्ट सम ऑल अरे. लेट्स से ये एक और फंक्शन है सम ऑल अरे जो थीटा n टाइम लेता है. आइदर वे ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है, although it may not be doing very interesting stuff for you, but the running time of this function, ये जो function है इसका running time वही होगा जो इस recurrence से निकलेगा, क्योंकि इस recurrence, ये जो recurrence है ये exactly इस function की recurrence है. और इसी तरह के एक और different function लिखा जा सकता है जिसकी recurrence यही हो. Make sense? यस सर. So बताना आपको ये मकसूद था कि अभी हम जो करने जा रहे हैं, अभी जो हम करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, वहां पे हमारे पास रिकरेंस होगी और रिकरेंस को हम सॉल्व करेंगे. वो रिकरेंस के लिए किसी इंटरेस्टिंग फंक्शन का होना या उसको देखना एनालिसिस के लिए वक्ती तौर पे इतना जरूरी नहीं है. यू कैन थिंक कि कोई एक फंक्शन है और उसकी रिकरेंस ये है, और अगर रिकरेंस गिवन हो, हाउ टू सॉल्व दैट रिकरेंस. Okay? Yes? यस सर. सर जाहिद का सर ग्रुप में मैसेज आया कि इसे एडमिट करें. यार वो पहले एक दफा कोई स्टूडेंट ऐड हो गया था, पता नहीं वो 51 रोल नंबर का, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है. जाहिद कलीम को ऐड कर लें. यस सर, इसका ग्रुप में मैसेज आ रहा है. अच्छा ठीक है, कर दिया जी. तो ये जाहिद हमारे स्टूडेंट हैं. ये जाहिद साहब, आप स्टूडेंट हैं हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के? जाहिद not responding. Anyways, okay, so the question is कि अगर आपको ये वाली रिकरेंस या इस तरह की कोई भी रिकरेंस गिवन हो, तो रिगार्डलेस ऑफ के ये रिकरेंस जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एल्गोरिथम दिखाएं वो क्या कर रहा है, रिगार्डलेस ऑफ दैट यू हैव टू सॉल्व दैट रिकरेंस. और अभी मैं बल्कि ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर इस तरह की रिकरेंस हो आपके पास, तो आपके जहन में जो फौरी तौर पे फंक्शन जाएगा वो किस तरह का होगा. मिसाल के तौर पे दिस इज C1 एंड दिस T of n is 2 times T of n/3 plus C2n. आपके जहन में जो फौरी तौर पे स्केच बनेगा कोड का वो ये बनेगा कि कोई एक कोड है जिसमें बेस केस लगा हुआ है. दिस इज द बेस केस, दिस इज द बेस केस, विच मीन्स कि उसका जो भी इनपुट साइज है अगर वो 1 हो तो कोई एक नॉर्मल सी कोई कंडीशन लगी होगी और फंक्शन रिटर्न कर जाएगा.
और अगर इनपुट का साइज 1 से ज्यादा है तो कोई 2 रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं, हर रिकर्सिव कॉल का साइज जो है वो 3n/3 है, यानी 1/3 ऑफ द इनपुट्स, और 2 कॉल्स हैं। वो दोनों कॉल्स आइडेंटिकल भी हो सकती हैं और वो दोनों कॉल्स सेम इनपुट पे हो सकती हैं, फर्क इनपुट्स पे हो सकती हैं, लेकिन हर कॉल में के अंदर जो इनपुट साइज जा रहा है वो n/3 है। 2 रिकर्सिव कॉल्स हैं और वो किसी भी ऑर्डर में हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कंसेक्टिव कॉल्स हों, एक कॉल हो फिर बीच में कुछ स्टेटमेंट्स हों फिर अगली कॉल आ जाए। किसी भी ऑर्डर में, किसी भी सीक्वेंस में 2 रिकर्सिव कॉल्स मौजूद हैं जिनका रनिंग टाइम ये है, और उस कोड के अंदर रिकर्सिव कॉल्स के अलावा जो काम हो रहा है वो θn वाला काम हो रहा है। इस तरह का कोई कोड है जिसकी रिकरेंस ये है। मेक सेंस? यस सर। जी सर। यस सर। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करें? अब इंट्यूटिवली अगर इसको देखें तो आपके ज़हन में क्या आता है, इसका रनिंग टाइम क्या होना चाहिए? जैसे लास्ट टाइम एक स्टूडेंट शायद मर्ज सॉर्ट के बारे में ये कह रहे थे कि इट वाज इंट्यूटिवली क्लियर कि ये लॉग एन टाइम है। तो वहां पे मैंने बताया था कि इन सर्टेन केसेस यू मे हैव अ वेरी क्विक आइडिया के रनिंग टाइम क्या होगा, बट मे बी इन अदर केसेस you have to go through the painful derivation to get the actual result. And maybe this is one of the examples in which your intuition may not help you, but I let you decide कि इसका रनिंग टाइम इंट्यूटिवली आपको लगता है क्या होगा। मिसाल के तौर पे इसी फंक्शन को देख लें, इसका रनिंग टाइम क्या होगा अगर अरे का साइज n हो तो? व्हाट डू यू थिंक जी? एनी आइडिया? सर n होगा, n क्यों? बिकॉज n तो ये पहली कॉल में ही लग गया ना, जब पहली दफा इंटर हुआ पहली कॉल में ये n टाइम तो पहली कॉल। सर आपकी आवाज चली गई है। बीच में ये खराब हो गई थी, ये चली गई थी वीडियो। जी सर। यस और ये सर। कब से ऐसा है? सर 2 मिनट सर से। बता रहे थे कि पूछ रहे थे कि कितना हो सकता है। ठीक है, सो आई वाज आस्किंग कि ये कितना है, और एक स्टूडेंट बता रही थी कि ये शायद θn है। तो मेरा उस पे काउंटर आर्गुमेंट ये था कि θn आप किस हवाले से कह रहे हैं, क्योंकि जब मैं मेन से इस फंक्शन को कॉल करूंगा, मेन के थ्रू मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं, लेट्स से ये कोई मेन है और इसके अंदर मैं फंक्शन को कॉल करता हूं सर स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन शेयर कर दे सर। ओके। होगी शेयर? यस सर। सो मैं ये अर्ज कर रहा था दोबारा कि अगर मैं मेन से इस फंक्शन को कॉल करूं तो जब पहली दफा मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा तो पहली कॉल के अंदर ही ये θn टाइम तो कंज्यूम हो जाएगा ना। ये देखें, ये सम का एक फंक्शन लिखा हुआ है, ये लूप लगा होगा इसके अंदर। इस θn, इस सम के अलावा और काफी सारा काम है जो इस फंक्शन में हो रहा है, और पर्टिकुलरली रिकर्सिव कॉल्स हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये टोटल रनिंग टाइम जो है वो सिर्फ θn होगा? यानी इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि जो टोटल रनिंग टाइम है वो सिर्फ यही वाला रनिंग टाइम है, ये जो रिकर्सिव कॉल्स हैं दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग मच।
ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू आर सेइंग दैट? मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि what make you think like so okay it is just theta n and not anything more because there are recursive calls also. सर मुझे इसलिए लगा था कि n/3 जो है उसकी कॉस्ट n से कम है, तो जिसकी ज्यादा है तो शायद वो होगी थीटा n। लेकिन बेटे फिर यही चीज जो है वो आपको यहाँ पे भी गालिबन अगर आप देखें मर्ज सॉर्ट के अंदर ये जो कॉस्ट है ये n से कम है ना, n/2 है, n से तो कम है। मर्ज सॉर्ट का जो हमने किया था n/2 है ना, विच इज स्मॉलर देन n। तो यहाँ पे भी जो रनिंग टाइम है वो आपको एट द एंड ऑफ द डे थीटा n कहना चाहिए। जी सर ठीक है। चाहिए था इसी आर्गुमेंट के लिहाज से, लेकिन यहाँ हमने देखना सर आपकी आवाज जो थी वो 1 मिनट के लिए चली गई थी वो। कैन यू लिसन मी नाउ? कैन यू हियर मी यस नाउ? सर। यार ये इंटरनेट थोड़ा सा इशू कर रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, बट एनीवेज वेयर वर वी? सर n/2 आप कह रहे थे कि n/2 जो है वो स्मॉलर वैल्यू है n से, सर वहां से। ठीक है सर आप जनरल पूछ रहे हैं कि आप किसी स्पेसिफिक इनपुट के ऊपर पूछ रहे हैं? क्योंकि लास्ट टाइम हमारी बात ये हुई थी कि किसी स्पेसिफिक इनपुट के ऊपर जो है हम फॉर्मूले को जो है वो सॉल्व करेंगे। नहीं, इनपुट का साइज कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती, दिस इज जनरल। इनपुट का साइज जो होता है वो दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, दैट इज सम n। फिलहाल मैं सिर्फ इस एक पर्टिकुलर रिकरेंस के हवाले से पूछ रहा हूँ। यानी मैं ये बेसिकली ना क्लियर करना चाह रहा हूँ, जो लास्ट टाइम ये कमेंट आया था और शायद आप ही की तरफ से आया था, ये जो अभी मेरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि इट लुक्स इंट्यूटिव कि ये n log n है, और मेरे लिए ये बात थोड़ी सी मैं इस बात को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था कि ये कैसे इंट्यूटिव है। मुमकिन है आप रिकरेंस को देख के कुछ क्यूज अपने ज़हन में रख रहे हो कि अगर रिकरेंस इस तरह की हो तो इस तरह का रिजल्ट आएगा, इस तरह की हो तो इस तरह का रिजल्ट आएगा। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं वो क्यूज आपके जहन से पढ़ना चाहूँ कि किन क्यूज की बेस पे आप लास्ट टाइम कह रहे थे कि द थिंग्स आर इंट्यूटिव। क्योंकि हो सकता है वो क्यूज या जो भी वो पैटर्न्स आपने जहन में बनाए हुए हैं, मुमकिन है वो रिकरेंस चेंज करने से या थोड़े से नंबर्स चेंज करने से या इनपुट का साइज चेंज करने से या नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स को चेंज करने से मुमकिन है वो जो क्यूज आपके जहन में हैं वो शायद आपको उतना हेल्प ना करें, और यू मे एंड अप हैविंग अ डेरिवेशन एट द एंड ऑफ द डे। सो इसीलिए मैंने ये जो रिकरेंस लिखी है ये बिल्कुल मर्ज सॉर्ट जैसी है, लेकिन इसमें फर्क सिर्फ ये है कि वहां पे जो अरे थी उसका साइज था n/2, रिकर्सिव कॉल्स 2 ही थी। यहाँ पे जो अरे है इसका साइज है n/3, रिकर्सिव कॉल्स 2 ही हैं। सो सिर्फ थोड़ा सा फर्क है कि जो आपकी रिकर्सिव कॉल है उसमें जो इनपुट साइज जा रहा है वो n/2 की बजाय n/3 जा रहा है। तो अब वो जो इंट्यूशन थी आपकी कि दिस विल बिकम n log n इंट्यूटिवली, जिस बेस पे आप ये कह रहे थे उस बेस पे अगर आप इसको एनालाइज करें तो व्हाट रिजल्ट आर यू एक्सपेक्टिंग? बिकॉज जब मैं डेरिवेशन पे जाऊंगा तो आई गेस के इसका रिजल्ट फर्क होगा, आई गेस जो आपकी इंट्यूशन है। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। और ऐसा नहीं है कि हम दुनिया में हर दफा जब एक नई रिकरेंस आएगी तो हम हमेशा ड्राइव करके उसका रिजल्ट निकालेंगे। हम इंशाल्लाह
इसके कुछ पैटर्न्स देखेंगे, लेकिन वो पैटर्न्स नॉर्मली इंट्यूशन बेस्ड नहीं होंगे, वो डिफरेंट रूल्स होंगे कि अगर रिकरेंस इस तरह की है उसमें ये वाले पैटर्न्स हैं तो दैट इज द रिजल्ट, अगर ये है उसमें ये वाले पैटर्न्स हैं दैट इज द रिजल्ट एंड सो ऑन. प्रैक्टिस करने के बाद वेरी क्विकली वी विल बी एबल टू एक्चुअली पिन डाउन कि किस किस्म की रिकरेंसेस जो हैं उनके किस किस्म के रिजल्ट्स होंगे, और फिर उसके बावजूद कई ऐसी रिकरेंसेस होंगी जिनको हमें ड्राइव ही करना पड़ेगा, उनके को फॉर्मूले प्री डिफाइंड नहीं होंगे, कोई नई उसमें पैटर्न्स आ सकते हैं. So the goal for this question is really to ask you what is the result of this. So मेरा ख्याल है बेहतर ये है कि हम इसको एक्सपेंड करके देख लें और इसको सॉल्व करके देख लें एंड सी व्हाट द रिजल्ट कम्स अप, और जो भी फिर हमारे ज़हन में है फिर उसको और इसको हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं. ठीक है जी सर. So let's drive it. First of all, as you know, T of n is equal to 2 times the value plus C2n. और आप मुझे यहाँ पे बताएंगे कि ये वैल्यू क्या होगी, यानी अगर T of n that is equal to 2 times T of n over 3 हो तो T of n over 3 की वैल्यू क्या होगी? That would be 2 times T n over 3 divided by 3 plus C2 n over 3. Agreed? Yes. Yes sir. Sir. And that will turn out to be 2 times T n over 3 square plus C2 n over 3. और इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं that will become 2 square T n over 3 square plus C2n times 2 over 3 plus C2n. Agreed? Yes sir. Okay, let me just open up this once more to see the pattern. 2 square. यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने इन दोनों को कंबाइन करके नहीं लिखा, और उसकी एक रीज़न है, मुमकिन है इनको कंबाइन करना इतना फ्रूटफुल ना हो सकता है हम इसको सीरीज की फॉर्म में जाने दें और बाद में देखेंगे ये कोई खास किस्म की सीरीज बन रही है तो हम सीरीज का फॉर्मूला लगा लें. सो अभी इनको कंबाइन करना शायद इतना मुनासिब नहीं है. ठीक है? यस? Okay, sir. So that is 2 over 3 C2n plus C2n. And यहाँ पे अगर मैं लगाऊं, अगर आप इसको देखें तो अगर मैं n over 3 square की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं तो I will be having n over 3 square everywhere. Yes? Yes sir. And that will turn out to be 2t n over 3 cube plus C2 n over 3 square, which finally turns out to be 2 cube t n over 3 cube plus 2 over 3 whole square C2n plus 2 over 3 C2n plus C2n. Yes? Yes sir. सर जरा मैथ थोड़ी सी कमजोर है, ये सेकंड लास्ट लाइन से जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा. यहां से यस सर. इस जगह से ये वाली वैल्यू. यस सर. सो पहले तो मैंने वैल्यू निकाली है n over 3 स्क्वायर की. ये वैल्यू मैंने कैसे निकाली है? मैं इस इक्वेशन में गया और जहां पे n था वहां पे मैंने n over 3 स्क्वायर प्लग इन कर दिया. यस? यस सर. सो जहां पे n था वहां पे n over 3 स्क्वायर, फिर n की जगह पे n over 3 स्क्वायर, एंड अगर मैं इसको n over 3 स्क्वायर को इस 3 से भी मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट n over 3 क्यूब. यस? यस सर. सो ये तो n over 3 स्क्वायर की वैल्यू है, ये इस पर्टिकुलर थिंग इसकी वैल्यू. ये 2 स्क्वायर जो है इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 क्यूब हो गया, और n over 3 स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, ये जो पैरेंथेसिस के अंदर है. ओके?
यस सर, समझ आ गया सर, थैंक यू। ओके, ये फिर 2 स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2 स्क्वायर C2n ओवर 3 स्क्वायर, और इसको अगर मैं C2n साइड पे ले जाऊं तो ये 2 ओवर 3 का होल स्क्वायर हो गया ना, 2 स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, यस सर। okay. Now I can write this in a following form if you allow me, or even if you don't allow me. I'm going to write this T yes. Yes, sir. So this is the result. So let me rewrite this in the next slide, because we have really pinned down the solution to its more to a better form. And then Tn is simply ये पूरी सीरीज को मैं रिवर्स करके लिखने लगा हूं, यानी यहां पे सीरीज आप देखें ना, इस फॉर्म में लिखी हुई है, तो इसको अगर मैं उल्टा करके लिखूं, उल्टा मीन्स के 1 + 2 को आप 2 + 1 लिखते हैं तो जवाब तो सेम रहेगा ना, मैं उल्टा करके लिखने लगा हूं। सो दैट विल बिकम C2n + 2 ओवर 3 C2n plus 2 over 3 square C2n plus 2 over 3 raised to the power k minus 1 C2n. Okay? k-1 क्यों? Okay, sir. क्योंकि हमारा पैटर्न ये बता रहा है कि जब यहाँ पे 3 होता है तो यहाँ पे 2 होता है। सो अगर यहाँ पे k होगा तो यहाँ पे k minus 1 होगा। यस सर, ओके। मेक सेंस? यस सर। सो फॉर सो गुड। आपको समझ आ रही है? चीजें बहुत मुश्किल तो नहीं हो रही? इज दैट फाइन? Yes, sir. ओके, ग्रेट। सो अब क्या करें? अब हमें चाहिए रिकरेंस को रिमूव करना। रिकरेंस को रिमूव कैसे करें? दिस थिंग, यानी what I really want is n over 3 raised to the power k, that becomes 1. Yes, sir. तो इसके लिए k की क्या वैल्यू होगी? सही है। What should be the value of k such that the recurrence goes to its base case and then we just plug in the base case value and we get rid of the recurrence. So यहाँ पे आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं 3 raised per k becomes n, और अगर मैं log base 3 लूं दोनों साइडों पे, अब आप कहेंगे log base 3 क्यों लिया है? भाई मैं तो कुछ भी ले सकता था दोनों साइडों पे, log base 2, log base 3, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए थी। मैंने log base 3 इसलिए लिया है कि ये जो फैक्टर 3 है ये कैंसिल आउट हो जाए एंड k जस्ट बिकम्स in this form. Okay? Yes. Okay, sir. Yes, sir. Okay. अगर k की ये वैल्यू हो तो फिर n over 3 raised to the power k, this becomes 1. So let's plug in this value and see what tn turns out to be. Tn then becomes 2 raised to the power log of n to the base 3 into t of 1 plus C2n plus 2 over 3 C2n plus so on 2 over 3 raised to the power log n to the base 3 minus 1 C2n. Yes? Yes, sir. Now I can just get rid of this recurrence by writing a C1 there.
Yes? जी सर. अब अगर आप गौर से देखें, this becomes n raised to the power log of 2 to the base 3 because n and 2 they are swappable. ओके सर. टाइम्स C1, मैं C1 को स्टार्ट पे लिख रहा हूं, ये जो टाइम C1 प्लस ये जो सारी सीरीज है इसमें मैं C2n कॉमन ले रहा हूं, इसमें मैं C2n कॉमन ले रहा हूं, and I will be having 1 plus 2 over 3 plus 2 over 3 square plus 2 over 3 raised to the power log n to the base 3 minus 1. Okay? सर ये 3-2 की समझ नहीं आई. किसकी समझ नहीं आई? C1n और log 3/2. ये ना फॉर्मूला होता है या एक आप यूं समझ लेंगे प्रॉपर्टी है लॉग की. अगर मेरे पास हो a raised to the power log x to the base b, तो a raised to the power log जो होता है ना, अगर इस फॉर्म में हो तो जिसकी पावर में लॉग होता है वो वैल्यू और जिसका लॉग लिया जा रहा है, इन दोनों को आप स्वैप कर सकते हैं एंड द रिजल्ट स्टेज द सेम. Make sense? Okay sir, clear. In that case, you can swap this n with this 2 and you just get the same result again. Any other confusion? No sir, all is clear. Okay, great. So now what we really want is actually we really want to solve this series. The series is a big bottleneck. लेकिन सीरीज सॉल्व करने से पहले आप ये देख लेंगे C1 ये होगा n raised to the power 0 point something 0.x. क्यों? क्योंकि log of 2 to the base 3 इसको आप यूं समझ लें, log of 2 to the base 3, इससे मुराद है कि मैं 3 की क्या पावर लूं, 3 की क्या पावर लूं कि 2 आ जाए. वो 3 की पावर जो है वो 1 से लेस होगी ना. यस सर. तो इसका मतलब है जो भी इसका जवाब होगा वो 0 point something होगा. एक्सक्यूज मी. ठीक है. So the answer is 0 point something. क्यों? क्योंकि 3 की पावर अगर मैं 1 या 1 से बड़ी लूंगा तो फिर आंसर कभी भी 2 नहीं आएगा, वो तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा. सो 3 की वो पावर जो मुझे 2 रिजल्ट करेगी वो पावर हमेशा 1 से लेस होगी और 0 से बड़ी होगी. सो दैट पावर इज 0 point something. पता नहीं क्या है, आई डोंट केयर. 0.7 है, 0.6 है, 0.622 है, जो भी है, बट दैट इज स्मॉलर देन 1. दैट इज समथिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड. सो मैं इसको 0.x लिख रहा हूं. सही है. प्लस C2n, और अब ये एक बहुत बड़ी सीरीज है जो मेरे लिए अजाब है. Yes, no? Jesus. Okay. So how to solve the series? Let me just first focus on the series. This is 2 over 3 plus 2 over 3 whole square this is the series. और अगर आप गौर से देखें, this series is smaller or equal to the following series.
एग्रीड? Yes, sir. यानी बजाय मैं log n बेस 3 माइनस 1 टर्म्स लेने के, मैं अगर इन्फिनिटली मैनी टर्म्स ले लूं तो अब जो मेरे पास टोटल सम आएगा वो डेफिनेटली छोटा तो नहीं होगा ना ओरिजिनल सम से, या बड़ा होगा या बराबर होगा, डिपेंडिंग अपॉन के n की वैल्यू क्या है। अगर n की वैल्यू ओरिजिनली बहुत बड़ी है, n की वैल्यू खुद भी इन्फिनिटी के करीब है, तो फिर जो ओरिजिनल सम है और जो मेरा नया सम है दे आर इक्वल। अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है, इट्स अ फाइनाइट वैल्यू, तो फिर ये जो टर्म्स हैं, यानी ये जो सीरीज है, जो इन्फिनिट सीरीज है, दैट हैज अ लार्जर सम। यस, नो? जी सर। ये क्लियर हो रहा है? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इट विल बिकम क्लियर शॉर्टली। लेकिन आप ये एग्री करेंगे कि ये जो ऊपर वाली सीरीज है, इट इज नॉट बिगर देन द सीरीज जो कि स्मॉल नीचे है, क्योंकि जो सीरीज है क्या, इवेंचुअली एक नंबर बनेगा ना, सम एक नंबर बनेगा, सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो ये जो सम की वैल्यू है, ये जो नीचे आ रही है, ये छोटी नहीं है ओरिजिनल सम की वैल्यू से। यस? जी सर। लेकिन अब अगर गौर से देखें, ये जो सीरीज है, अगर इस पे फोकस करें तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है और इसके इन्फिनिट टर्म्स हैं, और अगर ज्योमेट्रिक सीरीज का सम आपको याद हो तो इट विल बिकम 1/1 माइनस आर। रिमेंबर, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम क्या होता है? 1/1 माइनस आर, सर। और यहाँ पे r है 2/3। सो ये जो नीचे वाली सीरीज है जो एक्चुअली बड़ी है, दिस एक्चुअली बिकम्स 1/1 माइनस 2/3, and that turns out to be I guess it turns out to be 3. Yes? Yes sir, 3 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो रनिंग टाइम है वो बड़ा नहीं है इससे, मेरा एक्चुअल रनिंग टाइम इससे छोटा ही रहेगा, ये इक्वल होगा। यस? इज दैट ट्रू? प्रेशर दिखा। ये बात बेटे समझ आ जी रही है? सर। क्वेश्चन है कि हमने फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का क्यों नहीं लगाया फॉर्मूला? बेटे फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। दैट फॉर्मूला विल बिकम अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज देयर आर लॉग्स इनसाइड एंड सो ऑन। और दूसरी चीज, हम एग्जैक्ट सम निकालना भी नहीं चाह रहे। अगर हमें बाउंड मिल जाती है, यानी अपर बाउंड मिल जाती है बिग ओ की फॉर्म में या बिग ओमेगा की फॉर्म में या थीटा की फॉर्म में, तो हम एग्जैक्ट सम की तरफ क्यों जाएं? असिम्प्टोटिक एनालिसिस की ब्यूटी ही ये है कि ये आपको एग्जैक्ट नंबर्स, एग्जैक्ट कॉन्स्टेंट्स, इनसे आजाद करता है। तो आप इसकी टेक्निक्स को अप्लाई करें ना, जहां कहीं आप क्विक एनालिसिस कर सकते हैं। अब एग्जैक्ट सम निकालने के लिए आपको लेट से बहुत ही तफसील के साथ हर नंबर को और हर फैक्टर को देखना पड़ेगा, क्या जवाब आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, वगैरह वगैरह। और अगर वो फाइनल नंबर एट द एंड ऑफ द डे कांस्टेंट बने, वो कांस्टेंट जो मर्जी हो, असिम्प्टोटिक एनालिसिस में डजंट मैटर। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। इसलिए काफी सारी जगहों पे जब आप असिम्प्टोटिक एनालिसिस कर रहे होंगे, असिम्प्टोटिक एनालिसिस विल हेल्प यू टू नॉट गो इनटू द निटी ग्रिटी और कांस्टेंट लेवल डिटेल्स। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट और जस्ट फाइंड आउट द बाउंड्स, दैट्स ऑल। और ये काफी जगहों पे ये ट्रिक होगा कि यार ज्योमेट्रिक सीरीज आ रही है, उसकी 50 टर्म्स हैं, वो इन्फिनिट टर्म्स ले लो यार, एट द एंड ऑफ द डे 50 टर्म्स का जवाब जो आएगा और इन्फिनिट टर्म्स का जो जवाब आएगा वो उनमें आपस में कांस्टेंट डिफरेंस होगा, व्हिच डजंट मैटर इन asymptotically. So I made my analysis quick but right in asymptotic terms. सही है? अगर मैं इसका एग्जैक्ट एनालिसिस करता, यानी अगर आप चाहें तो मैं इसका एग्जैक्ट एनालिसिस करता, तो एग्जैक्ट एनालिसिस गालिबन ये होता r⁻n-1 ओवर r-1। तो अब एग्जैक्ट एनालिसिस क्या निकलना है? जो a है वो तो 1 है, r जो है वो 2/3 है, n जो है वो मेरा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं। और यहाँ पे आप देखें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं लॉग, यानी टर्म नंबर 1 2 3, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इतनी आ रही है ना, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स।
Yes, sir. बस मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं एग्जैक्ट एनालिसिस के लिए। लेकिन एग्जैक्ट एनालिसिस करना अगर जरूरी हो तो हमें करना ही पड़ता, यहां पे जरूरी नहीं है, एंड दैट्स वन ब्यूटी ऑफ असिम्प्टोटिक एनालिसिस। -1 over 2/3 -1। अब बेटे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तरीके लगा के कर सकते हैं, ये जो एक्सपोनेंट है इसको रिमूव कर सकते हैं, ये n और 2/3 आपस में स्वैप हो जाएंगे, देयर आर वेज टू डू इट। लेकिन व्हाई वी आर pushing ourselves in those details when those details they turn out to be constant numbers which are negligible in asymptotic analysis. So अगर आप इन्फिनिट सीरीज पे जाएंगे जवाब 3 आया है, अगर आप इन्फिनिट सीरीज पे नहीं जाएंगे तो जवाब हो सकता है 2 point something या 1 point something, doesn't matter। मेरी बात समझ में आ रही है? Okay, sir. Okay, sir. Okay, great, that's a good question। So t of n is no larger than this value, that means अगर आप गौर से देखें t of n is big O of n। Yes? Yes, sir. Yes, sir. big O मैंने क्यों लगाया है, थीटा क्यों नहीं लगाया यहाँ पे? क्योंकि ये n से छोटी भी हो सकती है। Direct analysis क्या? क्योंकि ये जो वैल्यू है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि t of n is smaller or equal to this thing, and this thing actually belongs to n, this actually is n, which means my tn is smaller or equal to this, और smaller or equal to का relationship जो है वो big O में आता है, remember that? Yes, sir. अच्छा, जी सर। अब हमने big O तो निकाल लिया, हमने कहा ओके t of n is big O of n, t of n जो n से बड़ा नहीं है, लेकिन हम थीटा निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं कि अगर n से ज्यादा टाइम नहीं लेता तो फिर हो सकता है n over log n टाइम लेता हो, या n raised to the power 1 0.3 इतना टाइम लेता हो। व्हाट्स द लोअर बाउंड? अगर आप लोअर बाउंड को देखें, मैं दोबारा अगर शुरू में जाऊं, अगर मैं लिखूं ओके t of n is equal to 2 times t of n over 3 plus some constant times n, ये मेरा शुरू में था, तो आप देखेंगे कि t of n becomes bigger than c2n अगर मैं इसको एलिमिनेट कर दूं। जाहिर है इसका ये कोई ना कोई टाइम तो है ना, इसको यूं समझें, इसको यूं समझें 7 is equal to 2 plus 5, तो अगर मैं 2 को खत्म कर दूं तो 7 will become bigger than 5। Yes, sir. yes? Yes, sir. तो यहां से मैं इजीली ये साबित कर सकता हूं कि t of n is ओमेगा n, ये n से तो छोटा नहीं है। yes? सर अपर बाउंड भी n है और लोअर बाउंड भी n है। yes? सर थीटा भी n होगा। अभी पहले मैंने प्रूफ किया था कि अपर बाउंड भी n है, दैट मीन्स so we found theta bound using upper bound and lower bound separately। Okay, sir. in this example sometimes we can find out theta bound directly in just one go, but sometimes we need an upper bound separately and a lower bound separately to come up with a theta bound। सर एक चीज हमने सर फर्स्ट वैल्यू क्यों कट किया, हम सेकंड वैल्यू को भी तो कट कर सकते हैं c2n को। सेकंड वैल्यू को कट करके मुझे ये रिजल्ट अचीव नहीं हो रहा था। देखें मैं ये भी कर सकता हूँ ना, 7 is equal to 2 plus 5, 7 is bigger than 5, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 is bigger than 2, 5 को काट के। लेकिन हो सकता है ये दोनों दुरुस्त हैं, ये रिजल्ट भी दुरुस्त है, ये रिजल्ट भी दुरुस्त है। अब मुझे देखना है कौन सा रिजल्ट जो है दुरुस्त रिजल्ट्स में से कौन सा रिजल्ट जो है वो मेरे आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। मेरा आर्गुमेंट ये है कि मैं ये समझता हूँ या मेरा ये ख्याल है कि t of n जो है इट इज बाउंडेड बिलो बाय n। ये प्रूव करने के लिए विच रिजल्ट हेल्प्स मी, मैं तो वो रिजल्ट यूज करूंगा ना। रिजल्ट तो कई सारे हैं, कई सारी चीजें दुरुस्त हैं, कई सारे आर्गुमेंट्स दुरुस्त हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। मैंने ये वाला फॉर्मूला इस डेरिवेशन में क्यों नहीं यूज किया? दुरुस्त फॉर्मूला है।
लेकिन मैंने इसलिए यूज नहीं किया कि ये फॉर्मूला मुझे मेरे कंक्लूजन की तरफ जाने में हेल्प नहीं कर रहा. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू पिक. आई हैव टू पिक द वन विच इज करेक्ट and is helping me conclude what I really want to conclude. Yes, sir. Make sense? Exactly, sir. Yes. Great. ये एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स पे काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए हैं. मैं उनको एक दफ़ा देख लूँ. शायद वो जब बीच में कनेक्शन ऑफ हुआ था तब के हों. लेट मी जस्ट. सर वो मेरे से कनेक्ट नहीं हो रहा था तो मैं मैसेजेस कर रहा था. अच्छा, वो आपने 19 मैसेजेस कर दिए यार. एक बाकी रिप्लाई कर रहे थे सर मुझे. अच्छा, बाकी आपको समझा रहे थे. इट इज स्टार्टेड, मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा. आप जाहिद हैं? यस सर, मैं जाहिद. तो आपने ये PUCAT के अलावा किसी ईमेल से ज्वाइन किया हुआ है? आप हैं वो? नहीं सर, वो गलती से 2 ईमेल थी. एक मेरी पर्सनल थी तो वो पर्सनल पे ऑटोमेटिकली स्विच कर गया था तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा था. फिर मेरा आपने मुझे अलाउ कर दिया, लेकिन फिर किसी ने मुझे रेफर किया कि वो दूसरी ईमेल आईडी से ज्वाइन करें. ठीक है, ठीक हो गया. कूल इनफ. ओके, सो आई गेस यू गेट a good understanding of how to solve recurrence. I mean, what are the ways to solve the recurrence? And जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया, solving a recurrence just means removing the recurrence. Yes? Hello? Yes. जी सर. Okay, great. Now I will give you one more example, a different example of solving a recurrence, or maybe the example जिसमें जो अभी तक हम रिकरेंस को सॉल्व करने का तरीका सीख चुके हैं वो शायद इतना हेल्पफुल नहीं रहेगा. उसके लिए हमें एक हो सकता है एक दूसरा तरीका या इससे मिलता जुलता एक और वेल मैनेज तरीका जो है वो देखना पड़े. तो उस पर हम चलते हैं. और उसके बाद इंशाल्लाह आज ही मैं आपको लेक्चर के एंड पे एक असाइनमेंट भी दूंगा. उस असाइनमेंट को करने से आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं, अब तक हम जितना भी एल्गोरिथम्स पढ़ चुके हैं, वो कॉन्सेप्ट्स आपके काफ़ी बेहतर हो जाने चाहिए. ठीक है? और वो कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट होगी, आसान नहीं होगी. सो मुमकिन है जब आप ट्यूसडे को लेक्चर में आए तो आपके काफ़ी सारे सवालात होंगे, सर ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा. दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. सही है जी? सर असाइनमेंट कॉम्प्लिकेटेड दिएगा, पेपर आसान दीजिए. पेपर बेटे आसान होगा. पेपर आसान इसलिए होगा कि जब आप कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट खुद कर चुके होंगे तो दुनिया की हर चीज़ आपको आसान लगेगी, इसलिए पेपर आसान होगा. डोंट थिंक कि आप असाइनमेंट नहीं करेंगे तो पेपर आसान होगा. अगर आप असाइनमेंट नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई भी पेपर आसान नहीं होगा, वो जैसे भी बनाया जाए. समझ रहे हैं? जी सर. सो पेपर को आसान करने के लिए आप असाइनमेंट खुद करें, आपका पेपर आसान हो जाएगा. जो असाइनमेंट खुद करता जाएगा उसका पेपर आसान होता जाएगा. कितना जबरदस्त फॉर्मूला ये है ना? यस सर. यस सर. बेहतरीन. ओके, नाउ let me focus on one different problem. Let's say different problem, t of, let's say t of, and by the way, the base case is not restricted to always go to the size 1. It can go to any constant. Let's say मैंने बेस केस लगाया हुआ है कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हों तो तब कोई काम करके रिटर्न कर जाओ, अदरवाइज आगे जाओ. तो बेस केस के लिए जरूरी नहीं है कि वो हमेशा 1 पे ही जाएगा, वो किसी भी नंबर पे स्टॉप कर सकता है. और बेस केसेस मल्टीपल भी हो सकते हैं. एक बेस केस, दूसरा बेस केस. टी ऑफ 5 हो तो C1 है, टी ऑफ 3 हो तो C2 है, मल्टीपल भी हो सकते हैं. क्लियर है? यस सर. सो यहाँ पे मैं एक डिफरेंट बेस केस ले रहा हूँ, टी ऑफ 5 इज इक्वल टू C1 लेट्स से, और जो रिकरेंस ले रहा हूँ वो ये है, that is t of n over 5 plus plus t of 3n over 4 plus C2n. पहले तो आप मुझे बताएं कि अगर कोई कोड इस तरह का हो, कोई प्रोग्राम इस तरह का हो जिसकी रिकरेंस ये है, तो उस प्रोग्राम में क्या हो रहा होगा?
सर उसमें जो n हमारे पास होगा वो पहले k पे 5 में डिवाइड, उसकी 5 से डिवाइड करके उस पे रिकर्सिव कॉल की होगी, और उसको फिर 3n/4 करके भी उसको रिकर्सिव कॉल की होगी, 2 रिकर्सिव कॉल होगी उसके अंदर, ठीक। और एक So, उसमें पहली कोई ऐसा कॉल होगा जिसमें n वैल्यूज होगी। अच्छा, इसमें इसको आप यूं समझें, इसको आप यूं देख सकते हैं कि आप इसको बयान करते हुए ऐसे कह सकते हैं, यानी हाई लेवल अगर बयान करना हो तो यार जो कोड है उसमें 2 रिकर्सिव कॉल्स हैं। पहली बात, सही, रिकर्सिव कॉल्स 2 हैं। वो किस ऑर्डर में है, किस सीक्वेंस में है, पहली रिकर्सिव कॉल कब है, दूसरी उसके बाद कब है, क्या दोनों कंसेक्टिव हैं, दोनों के दरमियान कोई स्टेटमेंट्स हैं नहीं है, वी डू नॉट नो, बट 2 रिकर्सिव कॉल्स हैं। सही है? यस। ओके सर। अगली बात, उनमें से एक रिकर्सिव कॉल जो है वो 20% ऑफ द डेटा पे, अगर मैं 5 पे डिवाइड करूं तो 20% रह जाएगा ना डेटा। यस सर। यस सर। सो एक रिकर्सिव कॉल जो है वो 20% ऑफ द डेटा पे कॉल है, यानी वी ओनली वर्क ऑन 20% ऑफ द डेटा एंड वी लीव 80% आउट। 80% डेटा को हम साइड पे करके सिर्फ 20% उठाते हैं और उस पर हम वो रिकर्सिव कॉल कर देते हैं। यानी मेरे पास एक एम्प्लॉय है और उसको मैं काम देता हूं और उसको मैं सिर्फ 20% ऑफ द डेटा पे काम दे देता हूं, 80% ऑफ द डेटा उसको नहीं देता। ये कौन सा 20% है, आई डो नॉट नो, लेकिन कोई 20% डेटा है जिसपे मैं काम दे देता हूं ओरिजिनल डेटा के अंदर से। यस? प्लीज रिस्पॉन्ड करते रहा करें जी सर। ताकि मुझे ये पता रहे कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं हुआ हुआ। क्योंकि ये ऑनलाइन में ये खासा इशू है, इंटरनेट कई दफ़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो पता नहीं चलता, इसलिए मैं बार बार आपसे पूछता रहता हूँ ताकि आप इंटरेक्ट करते रहें। आई 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 जस्ट गेट टू नो कि आप लोग सुन रहे हैं मुझे और कोई कनेक्शन लॉस नहीं हुआ हुआ, इसलिए कोशिश करें कि 1 या 2 स्टूडेंट्स हैं वो कीप ऑन इंटरेक्टिंग। सही है? यस सर। ओके जी सर। यस। ओके। सो नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि ये अच्छा एक रिकर्सिव कॉल हो रहा है जो 75% ऑफ द डेटा पे है, यानी मेरे पास एक और एम्प्लॉय था, उसको मैंने कहा 75% ऑफ द डेटा दिया और उसको कहा यार काम करो, वो कर रहा है। अब रिकर्सिव कॉल्स के अलावा पूरे फंक्शन में थीटा एन काम हो रहा है, इसको समटाइम्स कहते हैं कंबाइन कॉस्ट। कंबाइन कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जो सारे रिजल्ट को कंबाइन करती है। एक ये तो रिकर्सिव कॉल्स हो गई ना। रिकर्सिव कॉल्स के अलावा रिकर्सिव फंक्शन में जो भी कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट, उसको कहते हैं कंबाइन कॉस्ट, यानी सारे रिजल्ट को कंबाइन करने की कॉस्ट रिकर्सिव कॉल्स के अलावा। क्लियर है? यस सर। यस सर। जी तो सर। ये बयान कर दिया। अब सवाल ये है कि व्हाट इज द रनिंग टाइम ऑफ दिस फंक्शन। पहली बात तो आप देखते ही अंदाजा इसका लगा लें, द रनिंग टाइम इज नो स्मॉलर देन n। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि सर सबसे बड़ी सर बिकॉज क्योंकि जी बताएं बेटे बताएं। लास्ट में हमें इन सारी चीजों को कंबाइन करना है और वो एन कॉस्ट में हो रहा है, इसीलिए हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर हम रिकर्सिव कॉल्स ना भी भेजें, पहली कॉल के अंदर ही जाके देखें, यानी इन कॉस्ट्स को, इस कॉस्ट को भी जीरो अज्यूम करें, इस कॉस्ट को भी जीरो अज्यूम करें, हालांकि ये जीरो नहीं है, ये कोई पॉजिटिव कॉस्ट्स हैं, तो फिर भी कम से कम इतना टाइम तो लग रहा है पहली कॉल के अंदर ही। तो ये टाइम तो नागुज़ीर है, इतना तो लगना ही लगना है। ज्यादा पता नहीं कितने से कितना लग रहा होगा, पता नहीं ये रिकर्सिव कॉल्स कितना टाइम ले रही होंगी। टोटल टाइम हो सकता है n² निकले या n³ निकले, लेकिन 12 n से नीचे नहीं जाने लगा ये। करेक्ट? जी सर। ओके। सो ये तो रिजल्ट Yes, सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं, यानी अगर किसी को लोअर बाउंड बतानी हो तो सिर्फ देख के बता सकते हैं कि यार n से नीचे नहीं है, लेकिन बहरहाल ये लोअर बाउंड टाइट नहीं है। हो सकता है n से नीचे ना हो सकता है n⁻1.5 से नीचे ना हो सकता है n² से भी नीचे ना हो। अभी ये टाइट नहीं है, जब बिगो निकलेगी तब टाइट निकलेगी। यस? जी Yes, sir. सर। ओके। इसका क्या करें? इसका क्या करें? एक तो तरीका ये है कि t ऑफ n
इसको हम कहें टी ऑफ एन ओवर 5 की वैल्यू लगाएं, फिर टी ऑफ 3n ओवर 4 की वैल्यू लगाएं और फिर C2n लिखें। अब देखेंगे यहाँ पे जो वैल्यू लगेगी उसमें एक रिकर्सिव कॉल यहाँ पे आएगी, फिर एक और रिकर्सिव कॉल आएगी, फिर एक नंबर आएगा, फिर इसको जब रिप्लेस करेंगे तो 2 रिकर्सिव कॉल्स अंदर आएंगी और फिर एक नंबर आएगा। तो अगली दफा 4 रिकर्सिव कॉल्स हो जाएंगी। फिर जब मैं इसको रिप्लेस करने जाऊंगा तो 2 रिकर्सिव कॉल से ये रिप्लेस होगा, 2 रिकर्सिव कॉल से ये रिप्लेस होगा, 2 से ये, 2 से ये, 8 रिकर्सिव कॉल्स हो जाएंगी। और 2 या 3 रिप्लेसमेंट्स के बाद मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा ये फाइंड आउट करना कि ये हो क्या रहा है। इसको ना फाइंड आउट करने के लिए कि ये हो क्या रहा है, मैं आपको 2 से 3 मिनट देता हूं, जरा ये खुद करके देखें। टी ऑफ एन ओवर 5 की वैल्यू निकालें इस इक्वेशन में से, यानी जहां जहां पे n है वहां पे n ओवर 5 लगाएं और उसको टी ओ एन ओवर 5 की जगह पे पुट करें, और उसके बाद 3n ओवर 4 की वैल्यू पुट करें और देखें कि 4 रिकर्सिव कॉल्स वाली वो जो एक इक्वेशन बनती है वो किस तरह से बनती है। टेक 2 मिनट्स एंड डू इट, आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है, ओके जी सर। let me have this in front of you. यार ये चैट के दौरान अगर फाइल अटैच करनी हो तो कैसे करते हैं ये चैट के अंदर, किसी को पता है? फाइल अटैच हो जाती है गूगल मीट में, चैट में? नो सर।
ड्रैग एंड ड्रॉप से कोई नहीं होती? नो सर नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। व्हाट्सएप पे भेज दे। आप जारी रखें, मैं आपको होमवर्क 1 जो है ना वो अभी ईमेल कर रहा हूँ, ठीक है? सर चार्ट में उसमें करना है ना? सॉरी? सर मतलब ये जो 4 फंक्शन है मतलब इसको फर्दर करना है सोल्व? देखें जरा, जो तरीका अब तक आपको पता है उस तरीके से करते चले जाएं, देखें आपको क्या मुश्किलात आती हैं। टी ऑफ एन को सॉल्व करें जैसे मैंने आपको बताया, सोल्यूशन कैसे करते हैं, देखें क्या इश्यूज आते हैं, फिर मैं उन इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यानी एक और तरीका आपको बताऊंगा सॉल्व करने का जो ज्यादा वेल मैनेज्ड है, बेहतर है। आप लेकिन अब तक जो तरीका आपको पता है उसके जरिए करें, ताकि जो दूसरा तरीका है उसकी इंपॉर्टेंस को आप समझ सकें। जी, मैंने होमवर्क 1 ईमेल कर दिए, अगर आप देख रहे हो उसको। आपको ईमेल मिली है? जरा 1 मिनट देखिएगा। हैव यू रिसीव्ड ईमेल? नो सर। नहीं मिली? नो सर। लेट मी शेयर द होमवर्क। मैंने वैसे अभी ईमेल की है, मुमकिन है सर, हद तक मिल वो गई पहुंच है। जानी चाहिए। सर मिल मिल गई गई। सर सर मिल मिल गई। गया। उसको जरा ओपन करें, उसको थोड़ा डिस्कस कर लें हम। फिर ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे, ये जो भी हम कर रहे हैं। लेट्स डिस्कस दी होमवर्क फर्स्ट। डोंट वरी अबाउट कि ये किसके कितने पॉइंट्स हैं, किसके कितने पॉइंट्स हैं। जस्ट डायरेक्टली सॉल्व द प्रॉब्लम्स इफ यू वांट टू सॉल्व। ये मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है? जी सर। यस सर। तो हम जी। 1 बाय 1 जरा सवाल को देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, गिवन अ लॉट ऑफ कूल एल्गोरिथम्स एंड मोर इंपॉर्टेंटली गुड हार्डवेयर, व्हाई इज इट स्टिल इंपॉर्टेंट टू गेट थ्रू द डिजाइन एंड स्पेसिफिकली एनालिसिस कॉन्सेप्ट्स। सो ये सवाल बेसिकली ये है कि हार्डवेयर अगर अच्छा मौजूद है, ऑलरेडी एपीआईज बनी हुई हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो आपको एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स पढ़ने की जरूरत क्यों है? इसका बड़ा तफसीली जवाब है पहले लेक्चर में, अगर आपको याद हो। यस? यस सर, एग्जैक्टली। सवाल नंबर Yes, 2, sir. why should we सवाल नंबर 2, why should we not run an algorithm on a computer and record the running time for whatever input we are worried about? ये सवाल ये है कि हम इतना खपते क्यों हैं कि इसका रनिंग टाइम क्या होगा वगैरह वगैरह। हम प्रोग्राम लिखें और डायरेक्टली कंप्यूटर पे चला दें और देख लें कितने सेकंड्स लग रहे हैं, तो और जितनी इनपुट पे हमें चाहिए उतनी इनपुट पे चला के देख लें। हम इतने क्यों, हम रन क्यों नहीं कर लेते, हम पहले एनालिसिस क्यों करते रहते हैं? इसका जवाब आपने सोचना है, ठीक है? वैसे इसका जवाब भी पहले या दूसरे लेक्चर में मौजूद है। ये सर आपने एक्सप्लेन किया हुआ है हमें। जी, सवाल नंबर 3 है, व्हाई असिम्प्टोटिक नोटेशंस? असिम्प्टोटिक नोटेशंस क्यों रिक्वायर्ड हैं? व्हाई नॉट विदाउट इट? अगर हम असिम्प्टोटिक नोटेशंस के बगैर चलें तो क्या मुश्किलात हैं, और असिम्प्टोटिक नोटेशंस के फायदे क्या हैं? कैन वी नॉट एक्सप्रेस द इन्स एंड आउट्स ऑफ एन एल्गोरिथम विदाउट असिम्प्टोटिक नोटेशंस? क्या हम असिम्प्टोटिक नोटेशंस के बगैर जिंदगी हमारी नहीं चल सकती? इसका जवाब मैं आपको क्विकली बता दूं, चल सकती है लेकिन बहुत मुश्किल से चलेगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है? लेकिन आप इस पे मजीद तफसील से सोचिएगा। क्लियर है? यस सर। जी सर। जी, सवाल नंबर sir. 4 है, एंड व्हाई रिकरियन? बाय द वे, रिकरियन क्यों चाहिए? व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एनालिसिस वी समहाउ जंप टू रिकरियन एंड रिकरेंसेस. इट इज आल्सो कॉमन प्रैक्टिस
to stay in recurrence until the final improved accepted variant of the algorithm and then code it without recurrence using maybe stack or for loops. Can we not do analysis without recurrence? Analysis से मुराद होती है ये जो आप running time निकालते हैं, इसको analysis कहते हैं, किसी कोड का या उसका analysis क्या होता है? ये जो running time हम निकालते हैं इसको analysis कहते हैं, ये जो अभी हमने जैसे derivation वगैरह की है. And how many actual programs have you written so far in recurrence? ये सवाल ये है कि अब तक आपने जितनी जिंदगी में अब जितने प्रोग्राम्स लिखे हैं उसमें से कितने हैं जो आपने रिकर्सिव लिखे हैं. If somebody give you a problem right now to think about writing a program for it, I bet that you will not even consider the term recurrent. Will you? Be honest. यहाँ पे ये सवाल ये बताता है कि आपने अब तक कभी जिंदगी में रिकर्सिवली सोचा नहीं. कोई प्रोग्राम भी आपको दिया जाता है ना तो आप हमेशा आपके ज़हन में आता है लूप 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 लिखें, 2 लूप लगा लें, स्टैक लगा लें, ये ले लें, वो ले लें वगैरह वगैरह. रिकरियन के बारे में सोचते नहीं है. तो ये एल्गोरिथम में अचानक रिकरियन कहां से घुस आई है और ये क्यों जरूरी है? यस, इसका जवाब भी 2 या 3 लेक्चर्स पहले मैंने बड़ी तफसील से दिया हुआ है. क्लियर है? जी सर. यस सर. सवाल नंबर 5. इफ यू हैव आंसर्ड द अबव क्वेश्चंस, और आगे एक मजेदार बात लिखी, इवन इफ यू हैव नॉट, you might have seen that the solution of several recurrences have to do a great deal of work with summations. Summation यानी series. अभी आप मजीद देखेंगे ना तो जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो वो सीरीज बन जाएगी, कोई ना कोई सीरीज बन जाएगी at the end of the day. And further you will be fine even without finding the exact sum. Finding the exact sum is sometimes close to impossible. The tight bound, however, is another story. ये भी जैसे सवाल किया था कि यार एग्जैक्ट सम क्यों नहीं निकाला है, बाउंड क्यों निकाल ली है, तो बहुत सारे केसेस में बाउंड विल वर्क, और ये वही बात लिखी हुई है यहाँ पे. द बाउंड्स जस्ट वर्क थैंक्स टू वेरी लार्ज इनपुट्स असिम्प्टोटिक नोटेशंस. इट्स गुड टू बिकम कंफर्टेबल विद बाउंड्स. बाउंड्स से मुराद होती है बिग ओ या बिग ओमेगा, इनको बाउंड्स कहते हैं, लार्जर देन लेस देन. द टाइट बाउंड इज something that we will be looking for mostly, sometimes directly and sometimes through lower and upper bounds separately. So it's good to know that a function is theta gn means that the function is big O as well as the big omega of the same. यहाँ पे सवाल नंबर 5 का टोटल मकसद है कि अपनी असिम्प्टोटिक नोटेशंस को रिव्यू कर लें, क्योंकि आगे जो सवालात आ रहे हैं वो असिम्प्टोटिक नोटेशंस के हैं. यस यस सर. सो पहले 5 सवाल जो हैं ये सिर्फ कहानियां हैं, मतलब आपको मोटिवेट करने के लिए. असल जो असाइनमेंट है सवाल नंबर 6 से शुरू होती है. आपको 2 फंक्शंस दिए गए हैं, एक है 2 raised to the power log of n to the base 1/3 और दूसरा फंक्शन है n raised to power 1.4. आपने इनको कंपेयर करना है कौन सा दूसरे से असिम्प्टोटिकली बड़ा है या बराबर है. क्लियर है? यस सर. जी सर. ओके सर. सवाल नंबर 7 में भी यही करना है. सवाल नंबर 8 में आपने टाइट बाउंड निकालनी है, और सवाल नंबर 9 इंतहाई इंपॉर्टेंट है जिसमें आपने ये रिकरेंसेस को सॉल्व करना है. क्लियर है? और ये बहुत मुश्किल रिकरेंसेस हैं, ये आसान नहीं है, ये थोड़ी डिफिकल्ट है. सही है जी? जी सर. और उसके बाद सवाल नंबर 10 है कि ये जो रिकरेंसेस लिखी हुई है ना, इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोई कोड लिख के दिखाएं जिनके रिकरेंसेस ये बने. जैसे अभी हमने लिखा था ना थोड़ी, ये थीटा 1 से घबराना नहीं है, दिस इज C1 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 एंड सो ऑन. यस, यानी कि सर ये बेस केसेस हैं. ये पहले कॉमा से पहले बेस केसेस हैं, उसके बाद आगे वो दूसरी हैं. मैं 2 लाइनों में लिखता होता हूँ, इसमें एक ही लाइन में कॉमा डाल के लिखा हुआ है. सर ये लास्ट में 8th के लास्ट में जो आपने क्वेश्चन लिखी है, इसमें जो स्टार्टिंग में ये ई सा बना हुआ है, इसको जरा एक्सप्लेन कर दें. आई ई ये इससे बिल्कुल अगला, ये सम को कहते हैं. ये सम को कहते हैं. लेट मी एक्सप्लेन दिस. अगर आपने लिखना हो लेट्स से 1 + 2 + 3 + 4 + .10, तो इसको लिखने का एक तरीका है, लेट i starts from 1 it goes to 10i. इसको ये लूप समझ लें, ये नोटेशन है सम को डिस्क्राइब करने की. ओके सर, थैंक यू. ओके.
और इसमें ये जो सवाल नंबर 9 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 180 नंबर हैं इसके 6 पार्ट्स हैं। ये 6 के 6 पार्ट्स जो हैं वो आप कर सकते हैं विदाउट द नॉलेज ऑफ कि इस पर्टिकुलर रिकरेंस को कैसे सॉल्व करना है। जो अभी हम रिकरेंस सॉल्व करने जा रहे थे उसका तरीका फर्क है, वो तरीका मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस कर दूंगा। उसके जब वो मैं तरीका कराऊंगा तो कुछ रिकरेंसेस आपको और दे दूंगा। ये सारी जो रिकरेंसेस हैं जो अभी होमवर्क में मौजूद हैं, ये भी उस तरीके से हो जाएंगी जो मैंने अभी आपको करवाना है। रिकरियन ट्री मेथड कहते हैं उसको, एमए में तरीका बोली जा रहा हूँ, रिकरियन ट्री मेथड। रिकरियन ट्री मेथड से ये सारी भी हो जाएंगी और मैं जो मजीद दूंगा वो भी हो जाएंगी। लेकिन ये जो पर्टिकुलर रिकरियन है, रिकरेंस, ये उस मेथड से नहीं होगी जो अब तक हम करते आ रहे हैं कि वैल्यू निकालें, वैल्यू पुट करें, वैल्यू निकालें, वैल्यू पुट करें, एक्सपेंड करते जाएं। हो तो जाएगी बट इट विल बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू हैंडल। इसको हैंडल करने का ज्यादा आसान तरीका है थ्रू रिकरियन ट्री, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो अब तक ये जो होमवर्क है इसको जानने के लिए आपको तमाम जो टूल्स एंड टेक्निक्स और जो लेक्चर्स हैं वो आपको अवेलेबल हैं। इसको आप कोशिश करें कि मैक्सिमम ऑफ दिस जो है ना, इसको कोशिश करें कि आप नेक्स्ट लेक्चर यानी मंगल तक ये होमवर्क खड़का दें। तब मैं आपको कुछ और रिकरेंस के प्रॉब्लम्स दे दूंगा जिसको आप रिकरियन ट्री से करेंगे और हम मिड टर्म्स के लिए रेडी हो जाएंगे। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 6 एक बार बता दें। क्वेश्चन नंबर 6 या पार्ट नंबर 6? क्वेश्चन नंबर। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ फंक्शंस असिम्प्टोटिकली। एक फंक्शन है 2 raised to the power log of n और ये नीचे बेस है 1/3 इज द बेस ऑफ लॉग, और दूसरा फंक्शन है n raised to the power 1.4। इन दोनों को कंपेयर करने से मुराद है क्या f of n g of n से असिम्प्टोटिकली लार्जर है, स्मॉलर है या इक्वल है। और इसके लिए मैंने आपको लिमिट टेस्ट बताए हैं अगर आपको याद हो। ओके सर। ठीक है जी। सो हैव फन विद होमवर्क 1। होमवर्क 1 इज रियली ब्यूटीफुल होमवर्क। अगर आप इसको कर लेते हैं, खुद करते हैं, you'll be having a good grip on the concepts that we have covered so far. Clear है जी? यस सर। सर एक बात पूछनी है, ये जो आपने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनमें पहले 4 क्वेश्चंस में तो चलें फिर भी समझ आता है कि कुछ लिख सकते हैं हम, मगर जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो तो सिर्फ कुछ नहीं आप लिखना। एक किस्म से अलर्ट कर रहे हैं। कुछ नहीं लिखना उसमें। आपको मैंने यही कहा कि भाई रिव्यू कर लें, चीजों को जरूरी है। एवं ना आगे मतलब वो ना एवं तो चल पड़े आगे और फिर समझ ना आ रही हो क्या करना है, तो बेहतर है रिव्यू कर। ओके सर। ठीक है सर सबमिट किधर कराना है जी? सबमिट बेटे मिड टर्म के बाद देखेंगे, फिलहाल आप सिर्फ मिड टर्म की तैयारी के लिए इसको यूज करें। ओके सर। सबमिशन के बारे में फिलहाल फोकस ना करें, फिलहाल सिर्फ मिड टर्म को फोकस करके इसको खुद से करने की कोशिश करें। यस सर। ओके ठीक है, ओके जी। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।